आजिर विषय गृहस्थ आश्रम। यह एक श्रेष्ठ विचार योग्य विषय। सृष्टिर आदि कालरू गृहस्थ जीवन चली आसी। माता पिता संतान संतति गृहस्थ आश्रमर गृहस्थ जीवनर स्वरूप अटे। जो गृहस्थ जीवन रे पवित्रता सत्यता दिव्यता शुद्धता थिला ताकू गृहस्थ आश्रम कहा जाउथला। एहा उपरे भिन्न भिन्न मत मध्य देइथांती। केही मध्य कहिथांती गृहस्थ जीवन रे रही मध्य शृंखलित भाव रे जीवन यापन करिबा, समस्तଙ୍କ प्रति आचार व्यवहार रे शुद्धता रखिबा ताकू मध्य गृहस्थ आश्रम कहा जाए। केही मध्य कहिथांती जे जणे नारी सदा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी अन्य समस्तଙ୍କ प्रति दृष्टि रे कृति रे वृत्ति रे शुद्धता रखिबा ही गृहस्थ आश्रम अटे। तेणु एही भारत रे दिने गृहस्थ आश्रम थिला। जेते बेले नारी को श्री लक्ष्मी नर को श्री नारायण कहा जाउथला, सेते बेले सेमाने संपूर्ण पवित्र धारण करुथले। संपूर्ण पवित्रता जोठारे थाए ताको आश्रम कहा जाए। तो सत्य जुगरे समस्त नर समस्त नारी सर्वगुण रे संपूर्ण थिले, 16 कला संपूर्ण थिले, संपूर्ण निर्विकारी थिले, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म थिला। समस्तଙ୍କ भितरे भातृत्व भाव आत्मिक स्नेह निस्वार्थ पर भावना दैवी स्वभाव मधुर वचन रहिथिला। मनुष्य ठारू आरंभ करी पशु पक्षी समस्ते सुखदायी थिले। प्रकृति सत प्रधान थिला। तो संपूर्ण अहिंसक फल रे बाघ गाई गोटे घाटरे पानी पिउथिले। तेणु गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय थिला। प्रकृति दासी होई सेवा करुथुला। प्रकृतिर सौंदर्य मनोहर थिला। प्रकृतिर नियम अनुसार तो सत प्रधान रु तम प्रधान आड़ को गति कला। प्रत्येक जिनिस सबु समय पाई एकापरी रही न थाए। तो सृष्टिर नियम परिवर्तन समय अनुसार सृष्टि चक्रर नियम अनुसार मानव जन्म मरण चक्र रे आसी सत प्रधान रु राजवस्था को आसिला। द्वापर जुग प्रवेश कला। माया रावण राज्य आरंभ हैला। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रे मानव वशीभूत हैला। गृहस्थ जीवन पवित्रता रु अपवित्रता को गति कला। फल रे गृहस्थ जीवन रे दुख देखा देला। तो किछि मानव गृहस्थ जीवनर दुख देखी गृहस्थ जीवन को संन्यास करने को लगिले। जो माने गृहस्थ जीवन रु संन्यास करी आश्रम जीवन बितेले से मानकु मुनि ऋषि साधु संत जोगी तपस्वी कहगला।
ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କେତେ ମହାନ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ। ଫଳରେ ରଜ ଅବସ୍ଥାରୁ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ତ ଫଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ୍ରୋଧରେ ରାଗି ଯାଇ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ପକ୍ଷୀଟି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲେ। ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହସ୍ଥୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଗୃହସ୍ଥୀ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଆସି ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣକ କହିଲା, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଦେବି। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରୁ ଫେରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନରେ ରାଗ ଆସିଯାଇଥିଲା। କ୍ରୋଧରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ମୁଁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବି। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପକ୍ଷୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲାବେଳେ ଇଏ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିପରି ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ନାରୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ମହାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଥିବ ଯେ ମୋ ମନର କଥାକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନାରୀ ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହସ୍ଥୀର କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଇ ଗୃହସ୍ଥୀର କଥା ମାନି ଆଉ ଜଣକ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସିଏ ଏଇ ସଂସାର ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ଗୃହସ୍ଥୀ ଜଣକ ମୋର କିପରି ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଘର ଭିତରୁ 3 ଜଣ ନାରୀ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ 3 ଜଣ ନାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ। 3 ଜଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦିବ୍ୟତା ଭରି ରହିଥିଲା। ଆଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଏଭଳି ନାରୀ କିପରି ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଗୃହସ୍ଥୀକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଥିଲେ, ଏ 3 ଜଣ ନାରୀ ବାସ୍ତବରେ କିଏ?
सन्यासी र प्रश्न बा सन्यासी र कथा शुणी गृहस्थी तांको कहिथिले ए तीन जन नारी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अटंती। तेणु सन्यासी गृहस्थीर कथा शुणी भाविथिले ए गृहस्थ भितरे तेणु दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आसिले केउठु। तापरे गृहस्थी जनक तांकु ज्ञान देवकु लागिथिले जे गृहस्थ जीवन भितरे रही आमे मध्य पवित्रता शक्ति बलरे दिव्यता शक्ति बलरे शुद्धता शक्ति बलरे आमे नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी हे परिबा। आम भितरे थिबा कुसंस्कार को जदि संन्यास करिबा तेणु आमको कौनसी जंगल को जीवा पाई पड़िब नाही। आमे ए घर गृहस्थ रे रही संन्यास जीवन यापन करि परिबा एवं मानवरु देवता हे परिबा। तेणु ए गृहस्थ व्यवहार रे रही संन्यास जीवन यापन करी निज भितर थिबा कुसंस्कार को दूर करी जे देवी देवता से बनी पारिचंती। तापरे सन्यासी कर गुरु से गृहस्थी मध्य ही पारिथिला। जने मनुष्यर आयुष 100 वर्ष 100 वर्ष को 4 आश्रम रे विभक्त करागला। प्रथम बाल्य अवस्था 25 वर्ष 25 वर्ष पर्यंत अखंड ब्रह्मचर्य पालन करिब। मन वचन कर्म रे संपूर्ण पवित्र रहिब। मध्यम किशोर अवस्था 25 वर्ष गृहस्थ जीवन रे सुख शांति बा संसार जीवन करि परिब। 50 वर्ष वृद्ध अवस्था वानप्रस्थ धारण करिब। कलिजुग शेष रे जेतेबेले मानव धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट पथ भ्रष्ट होई दुख शांति रे छटपट हैला सेतेबेले भगवान को प्रार्थना कला। समस्तंकर डाक शुणी भगवान मध्य ए धरा पृष्ठ को अवतरण कले। भगवान अवतरण होई प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान देले। भगवान परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सहज ज्ञान सहज राजयोगर शिक्षा देउछंती। एही गृहस्थ जीवन भितरे रही आमे भगवान को मने पकई परिबा तो भगवान परमात्मा आम समस्त को यही ज्ञान मध्य देउचंती। आश्रमर प्रकृत अर्थ कौन? आश्रम पवित्र स्थानर नाम अटे किंतु आश्रम अर्थ आश्रित सहित श्रम करिबा कर्ममय जगत रे रही हाथ रे काम करिबा सहित बुद्धि रे भगवान को मने पकेइबा। तो आश्रित जीवन बितेइबा भगवान को पाखरे निज जीवन को समर्पण करिबा। तो गृहस्थ व्यवहार रे रही आमे पवित्रता शक्ति बलरे आम जीवन को सुखमय करि परिबा। सुखदेव जेतेबेले गुरु करिया पई चाहिले व्यासदेव सुखदेव को कहिथिले राजा जनक पाखक जाओ सी तुमर गुरु हो पारे। सुखदेव पितांकर आदेश माने राजा जनक पाखक जाइथिले। राजा जनक पाखक जाई पहुँचले और देखिले राजा जनक राज्य सिंहासन रे बसिचंती। तांकर चारिपटरे दासी माने सेवा करुचंती। ए दृश्य सुखदेव देखी संकल्प करथिले
जे जड़े राजा एभली भोगविलास रहुथुबा राजा मोर गुरु हो पारे ना। तेणु राजा जनक सहित मिलन न मनई शुकदेव फेरी आसीथिले। राजा सिंहासन रे बसी मध्य राजा जनक शुकदेवर संकल्प को जानी पारिथिले। राजा जनक प्रहरी मानकू कहिथिले जे मोर जने शिष्य फेरी जाउछंती, आपण तांकू सत्कार करंतु। तापरे प्रहरी माने शुकदेव को जाई सत्कार करथिले। शुकदेव राजा जनक सम्मुख को आसीथिले। राजा जनक तांकू ईश्वरीय ज्ञान देथिले। तो ईश्वरीय ज्ञान दबा समय रे राजा जनकंकर स्थिति एभली अटल अचल थिला। शुकदेव देखी आश्चर्य हो जाउथिले। जने राजा हे एभली स्थिति किपरि बनै पारिचंती। ईश्वरीय ज्ञान दबा समय रे राजा जनक ईश्वरंक स्मृति रे निजकू भूली जाउथिले। हस्त व्यवहार रे बा राज महल रे रही तांको जीवन को से भली भावरे श्रेष्ठ करथिले। तेणु केवल से नाम मात्र राज्य चलाउथिले। बुद्धि तांकर ईश्वरंक पाखरे थिला। तेणु आमे से भली ए संसार रे रहिबा। ए संसार भगवानकर, आमे समस्ते भगवानकर। आमे जहा देखुचंती सब भगवानकर रचना, आमे निमित्त मात्र। तेणु कर्म करिबा पाई भगवान निर्देश देचंती बा भगवानकर निर्देश अनुसार मते किछि कर्म करिबा पाई पड़िबो। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ करिबा पाई ईश्वरीय ज्ञान निहाती आवश्यक। ईश्वरीय विश्वविद्यालय माध्यम रे जो सहज ज्ञान राजयोगर शिक्षा दिया जाउची, सेही शिक्षा आधार रे हम गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ करि परिबा। हे मोर दर्शक बंधु, आपणकू अनुरोध, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आपण माने शिक्षा अध्ययन करंतु। आपणक गृहस्थ जीवन को सुखमय करि परिबे। अच्छा, ओम शांति।
परिचय देला दिव्य गुण रूपी मोती माणिक्य रे संतान को सजाइला बदलिला गति ज्ञान देला गुंजी उठे ध्वनि मीठा बाबा शिव बाबा स्नेही बाबा शिव बाबा शिव बाबा गीता ज्ञान गीता ज्ञान दाता हे शिव बाबा तुमे सुखर सागर प्रीतिर झर एही मधुबनर रचनाकार मीठा बाबा शिव बाबा स्नेही बाबा शिव बाबा मीठा बाबा शिव बाबा स्नेही बाबा शिव बाबा